कि अपना दिन और अपना समय बिताएं कैसे। कईयों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि लॉकडाउन जो शुरू हुआ था 2 हफ्ते के लिए, वो अब एक्सटेंड हो गया है और अभी भी नहीं पता कि कब जाके खुलेगा। और जिनके लिए लगा था कि ये पहले एक वेकेशन का टाइम है, वो फिर फोर्स्ड वेकेशन हो गया और अब एवरीवन इज नाउ डेस्परेट टू गेट आउट ऑफ योर होम्स एंड इनटू आवर रेगुलर रूटीन। और क्योंकि ये नहीं हो पा रहा तो ये सारी जो एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग है, इसके कारण वी आर ऑल एक्सपीरियंसिंग सम काइंड ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो इसी के बारे में बात करने के लिए आज हमने बुलाया है सिमर ओंकार जी को। Simar Onkar ji is a university gold medalist in psychology, and he earned his bachelor's and master's degree and postgraduate training in behavioral medicine and psychotherapy from St. Xavier's College, Kolkata, the University of Jodhpur, Rajasthan, and Christian Medical College and Hospital, Ludhiana, respectively. He is also the director and chief applied psychologist at Great Life Applied Psychology Services at Chandigarh. He has 30 years of professional work experience to his credit in helping people with respect to issues in their careers, education, relationships, marriage, parenting and personality. इनके अपने भी शौक हैं, साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, पोइट्री है, फोटोग्राफी है एंड फिजिक्स। और ये सारे के सारे क्योंकि पी लेटर के साथ आते हैं तो ये सिर्फ एक ही लेटर के साथ इनकी बहुत सारी हॉबीज आ जाती हैं और भगवान ही बता सकता है कि बाकी लेटर्स के साथ कौन कौन सी हॉबीज एसोसिएटेड हैं। एक दो अनाउंसमेंट्स हैं जो बाकी हमारे ऑनलाइन सेशन से थोड़ी सी अलग हैं। एक, हम अपना वीडियो ऑन रख रहे हैं और शायद ऑडियो भी ऑन रखेंगे और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज ट्राई टू कीप द नॉइज एंड द साउंड टू द मिनिमम एज पॉसिबल। वीडियो आपकी इसलिए ऑन रखे हैं गए हैं बिकॉज सिमर वांटेड टू गेज एवरीवन्स एक्सप्रेशन व्हिच इज अ साइकोलॉजिस्ट ट्रेड आई बिलीव, कि आपके एक्सप्रेशन नोट करेंगे साथ साथ में कि आप किस तरह से उसके उनकी बातों के लिए रिएक्ट करते हैं। सो बिफोर वी बिगिन द प्रोग्राम, दूसरी बात यह है कि जितने भी हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमने आखिरी के सेगमेंट में रखे हैं एंड दैट सेगमेंट इज विल बी ऑफ अबाउट 15 मिनट्स और उसमें आप अपने सारे क्वेश्चन जो भी आपके, आई एम प्रीटी श्योर वी ऑल हैव प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क हिम क्योंकि हमारा आजकल के समय ही ऐसा चल रहा है। सो सिमर, मैं आपको हैंड ओवर करता हूं और मैं आपको ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि प्लीज आप हमसे बात करें कि ये सब है क्या और इसको कैसे करना है, कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, इनके सिम्टम्स क्या हैं, इनके डिफरेंसेस क्या हैं और कैसे हम अपने आप को मॉनिटर कर सकते हैं कि हमें इनमें से कौन से सिम्टम्स हैं और वो फेक सिम्टम्स हैं कि बाकी हमें कुछ हो रहा है। सो ओवर टू यू नाउ। थैंक यू। Thank you, Guru Pratap. And thank you, Preeti Gill, for the invitation, Guru Pratap for the introduction, and Gurleen for managing everything online for all of us. Let me begin, as Guru Pratap has requested, with a very short primer on, what psychology is and what psychologists do. Can I request an answer from anyone I can see on the screen? I'll just name people randomly. What about you, sir? Mona Chamak. I see that name on the screen. What comes first to your mind when you hear the word psychology or you hear the word psychologist? Arvinder is speaking, but his sound is off. जी, उनका माइक ऑफ है। गुरलीन, could you unmute? Yeah. Okay. Hello, am I audible? Yes, sir, you are. All right. First, I'm impersonating Mona Chaman. My Okay. system is not working, so I'm using my wife's ID. And when the term comes psychology, it's basically to deal with the inner emotions, what you feel, what your nervous system, what your nerves, absorbs the signals, how the mindset basically.
Okay, can I go over to just one more person, Kamaljeet? So there are Good. different there is like a conscious mind, subconscious mind, and unconscious mind, and thoughts goes into these three different levels or stages, and then I think it comes according to the situation, age, experiences, and stuff like that. My question was, what crosses first your mind? What comes first to mind when you hear the word psychology and psychologist? It is like psychology is what you think, your thoughts, Okay. and I think psychologist is with your behavior or something, depends which techniques they use, and then they can define it. Thank Basically you. psychologically how we are going through the different, because I'm not a psychologist or I know, but I just read a little about it. Thank you, Kamaljeet. GPS, since you are on, what crosses your mind? I think I can congratulate you guys. Maja House viewers seem to be pretty serious lot, right? And मैं वही कहने लगा था कि ये सारे ना बहुत पॉलिटिकली करेक्ट हो रहे हैं। हाँ, मैं जिससे भी बात करूं, मतलब अपने फ्रेंड से या अपने नोन से बात करूं कि साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, एवरीवन से कि पागलों का इलाज करते हैं। ये अब बोला ना कोई। You say that. अब बोला कोई। हाँ, अब बोला कोई। ठीक है, the honest answer is कि ये पागलों का सब्जेक्ट है, राइट? और ये पागलों के डॉक्टर है। That is what crosses your mind first. हमें ये चीज सुन के कोई दुख नहीं होता है। I hope the viewers don't mind. I'll be moving freely between English, Hindi, Punjabi and जी जी, प्लीज डू दैट, प्लीज डू दैट। बीच बीच में स्टाइल मारने के लिए शायद उर्दू भी, और समझा दूंगा, जरूर ट्रांसलेट जरूर कर दूंगा। So that's what crosses our minds first, right? और हमें उस चीज को सुन के, एटलीस्ट मुझे उस चीज को सुन के दुख तो नहीं होता है, राइट? क्योंकि आपका गैस सही है, कम से कम हम प्लांट्स और एनिमल्स के डॉक्टर्स नहीं हैं, राइट? और किसी इंजीनियरिंग फील्ड के डॉक्टर ही नहीं है, या इकोनॉमिक्स के डॉक्टरेट नहीं हैंडल करते, यू नो, वी डोंट पोजेस दीज काइंड ऑफ डिग्रीज। The one little thing I want to share with all of you is that there are 60 fields of specialization in psychology. Very simply defined, psychology is the scientific study of human behavior. It's a systematic approach. Scientific study means a systematic approach. And the simplest definition I can share with you of behavior is whatsoever we do. Whatsoever we do. Whether we do it overtly or whether we do it covertly inside our minds. That is the operational definition you should keep in mind as you listen to my talk for the next 10-15 minutes. After that, I'll take your questions. So that being the first thing, that's what I would like you to keep in mind. Second thing, as I just told you, there are 60 specializations in psychology, 60. Out of those, जो पागलपन को हैंडल करती हैं, वो सिर्फ 6 हैं। उनके नाम क्लिनिकल साइकोलॉजी है, एब्नॉर्मल साइकोलॉजी है, you know, behavior pathology है, forensic psychology है, criminal psychology है, etc. 6 out of 60 is just 10%. वाइब तगड़ी सेट हुई ना? हाँ जी। 6 out of 60 makes just 10% of psychology handles pagalpan, which is the common public opinion. 90% of psychology is about you and me, is about us. That is the first fact I would like to share with all of you. I'll come now straight to
my topic for the day. What is stress? I'll speak on the first word a little later, celebrating. We'll begin with the word stress. It is something that we are all familiar with. Anxiety, again, something that almost everybody is likely to be familiar with. And depression is also something that all of us would have definitely experienced at least once in our lifetime, if not more. Generally, there are more. To give an example, a very simple and easy example to differentiate between the three of them. Stress means when you have more of something and you're short on time. I have an exam coming up. I'm a student. I have an exam coming up. सारा साल तो मैंने पढ़ाई की नहीं. अब आखिरी के 3 महीने में obviously the load of the syllabus is quite a lot. I am bound to go under stress. Anxiety, जब आप ऐसे एग्जाम देने चले जाओगे जिसकी तैयारी पूरी नहीं है, obviously you will have a knot in your stomach, a fear, a dread कि वो सवाल आएंगे जो मैंने तैयार किए थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तैयार करके गया था अपने प्रोफेसर से पूछ के एंड ऑल दैट. अगर तो आ गए फिर तो एंजाइटी रिलीव हो जाएगी, और अगर नहीं आए तो फिर स्ट्रेस भी बढ़ेगा, एंजाइटी भी बढ़ेगी, and a sadness is likely to set in that I am going to flunk this exam. That sadness, if you actually flunk the exam and the scores arrive and you have actually flunked it, the sadness goes up in intensity. If you were really worried about not losing that exam, not losing that semester, not losing that year, not losing out on the score, sadness is likely to translate into depression. Because फिर बहुत कुछ सुनने को मिलेगा दूसरों से भी, and if you are a little self-critical तो फिर अपने आप को भी सुनाओगे, खुद भी सुनाओगे. This will lead to, a state called depression. Sadness is the start. It is between anxiety and depression. I didn't want to use 4 words in the title, so now I'll just bridge the gap between anxiety and depression. That is sadness. Many people actually, mistake sadness for depression. Many people mistake anxiety, for a disorder. Many people mistake even stress में आना, which is natural अगर आपने पढ़ाई नहीं की है. अब उसको अगर हम इन टाइम्स के साथ लिंक करें तो क्या होगा? Coronavirus has suddenly locked us down. That came as a surprise to everyone. The announcement of the lockdown. And suddenly people had a lot of time on hand at home. If they were already working from home like me, they also came under stress, because now work from home के साथ एक और चीज ऐड हो गई, which was work at home. अब झाड़ू भी लगाओ, पोछा भी लगाओ, बर्तन भी साफ करो, हेल्प्स भी नहीं है, मेड्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ अब खुद करना पड़ेगा. जो पहले टाइम मुझे पढ़ने के लिए मिल जाता था या रिसर्च करने के लिए मिल जाता था, या अपनी जो हॉबीज जीपीएस ने आपको बताई, उन डिसऑर्डर्स जिनको मैं कहता हूं, उनको एड्रेस करने को मिल जाता था, बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा था पिछले 1 महीने से, तो 1.5 महीने से. So it's not that I am not under stress. It's not that anxiety, कुछ काम खत्म करने थे टाइम पे, वो नहीं हो पाए. And they might have a financial bearing.
You know, so anxiety is bound to go up. And then we have, you know, the sadness that sets in. And then finally, you know, if you get to hear, if you get to ask, if you get to tell yourself, like as I said, if you have flunked the exam, आपको हर किसी से सुनने को मिलेगा, तुम साल के शुरू से नहीं पढ़ रहे थे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता इसमें, तुम छोड़ दो ये चीज. You know, a feeling of worthlessness takes over. A feeling of I will not be able to cope up with it. You lose your sleep also. But there are other things that have also crossed our mind ever since we came to know of our common, for the moment, I'll have to call it an enemy. It is an enemy, definitely, for us. And this is an invisible enemy. The coronavirus, which has been named COVID-19. इसने आके हमारे माइंड में कौन कौन से थॉट्स क्रॉस करवा दिए. अब उसके कारण भी स्ट्रेस होता है. सिर्फ टाइम का चक्कर नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेस में इसलिए आ गए क्योंकि लॉकडाउन हो गए, घर से काम करना पड़ रहा है और घर के काम भी करने पड़ रहे हैं और बहुत सारी चीजें कोऑर्डिनेट करनी पड़ रही हैं, फॉर विच नन ऑफ अस वाज प्रिपेयर्ड. नॉट इवन द नेशंस वर प्रिपेयर्ड. सो स्ट्रेस में तो सीधे ही आ गए. एंजाइटी इस बात की आ गई कि कोई भी सामान बाहर से आएगा तो अब उसको कैसे डिसइंफेक्ट करना है, वेजिटेबल्स हो तो उनको कैसे करना है, राइट, ग्रोसरीज हो तो उनको कैसे करना है. अगर कहीं आप लोगों को जाना पड़ रहा है ऑफिस, अगर आप बैंक में काम करते हैं या पुलिस ऑफिसर्स हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, तो उनको लेके भी स्ट्रेस होगा, उनको लेके भी एंजाइटी हो जाएगी. एंड ऑब्वियसली सैडनेस एंड डिप्रेशन, ये सारी चीजें जरूर होंगी, बिकॉज वन आइडिया क्रॉसेस आवर माइंड्स, लाइक इट और नॉट, अगेन एंड अगेन, कि अगर हो गया तो क्या होगा, हो गया तो क्या होगा. क्या क्रॉस करेगा हमारे माइंड को, हो गया तो क्या होगा. डेथ इज ऑन द वे, right? That is one of the first thoughts that can cross anybody's mind. कि अगर हो गया तो बॉस नंबर लगना शुरू हो जाएगा अपना और लग जाएगा. जिस तरह से हमें व्हाट्सएप मैसेजेस मिल रहे हैं सुबह, जिस तरह से न्यूज़पेपर्स भरे हुए पढ़ने को मिल रहे हैं, जिस तरह से टेलीविजन चैनल्स मिल रहे हैं, जो सुनने को मिल रहा है, जो देखने को मिल रहा है, उसमें डेथ काउंट लगातार चल रहा है, इन्फेक्शन रेट चल रहा है, those people who are admitted. And the worst thing about this common enemy is that it is untraceable, undetectable, right, for the first 14 days. It is asymptomatic, just does not show up as symptoms. That is why we need at least 28 days of absolutely no case to break the chain. At least 28, actually more. Now, what do you do when you are faced with these things? Now I'll come to the first word of the title of my talk. In what sense have I used the word celebrating? ये आपका टाइटल जो था that was very curious and interesting और इंट्रीगिंग भी था, क्योंकि कई लोगों ने, हमारे मेंबर्स ने पूछा हमें फोन करके कि ये किसका टाइटल हुआ कि आप स्ट्रेस को सेलिब्रेट कर रहे हो. Yes. And someone even wrote कि कल को ये भी आ जाएगा, सुसाइड डे को भी सेलिब्रेट करना है. मैं कहा मुझे तो नहीं पता, तो इसका जवाब तो बाद में आएगा. सो वेट फॉर द आंसर टू कम बैक. तो अब आप बताइए, किसको सेलिब्रेट करना? वर्ल्ड सुसाइड डे. अच्छा, वर्ल्ड सुसाइड डे. ओके. Okay, I'm not, I should clear it up, that I'm not using the word celebrate in the sense that you put on a song and you start dancing, oh, mujhe anxiety ho gayi, you know, let me celebrate.
oh, here comes stress, you know, I want to celebrate, let me put on Pink Floyd or whatever. ओ असली में तो डिप्रेशन हो गया, ठीक है, तो मजा आ गया. No, no, no. It's not to put on a song. It's not to shake a leg. It's not used in that sense. I'm using it in a different sense, which will just become clear. That sense is the theme and the thesis of my topic, of my talk today. That stress, anxiety, sadness, depression is inevitable. Okay. अगर आप सोच रहे हो कि इस सेशन के बाद में या किसी साइकोलॉजिस्ट को मिलने के बाद में या किसी थेरेपिस्ट को मिलने के बाद में आपकी जिंदगी से स्ट्रेस चले जाएगा, एंजाइटी चले जाएगी, सैडनेस चले जाएगा, डिप्रेशन चले जाएगा और सच्चित आनंदा की एक स्टेट आपके अंदर आ जाएगी, which is permanent and forever, you are sadly mistaken. We are all sadly mistaken. ये चीजें कभी नहीं जाएंगी जिंदगी से. So celebrating, the word celebration has been used, or celebrating stress, anxiety, sadness, depression. I have used it in the sense of the term, the phrase rather, that we have as an answer, as an extension to what I'm just about to say, that we have unfortunately been brought up on a very, very skewed diet. Very skewed diet. Right from our childhood, all the way up to whatever our ages are to date. हमारी लर्निंग सर्कल कभी कंप्लीट नहीं हुए, कभी पूरी चीज नहीं बताई गई हमको, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे हमारी लाइफ हो बाद में. दुनिया भर की चीजों पे दुनिया भर की चीजें इनकम्प्लीट छोड़ दी गई हैं. I mean, just recall what you had read in civics, in social sciences as part of our curriculum. What did we learn in civics? It had a different name later on, political science. क्या सीखा था हमने वहां पे? वहां से हम इंप्रेशन ये लेके आए थे कि गवर्नेंस कैसी होती है, कैसे चलती है, और बड़े होके क्या देखने को मिला कि असली में कैसे चलती है, असली में क्या होता है. हिस्ट्री में भी अच्छा साइड ही दिखाया गया, चाचा नेहरू, राइट. चाचा जी क्या क्या करते थे वो सब आप लोगों को पता ही, ठीक है, वो सब बाद में पता चल ही गया. ऑब्वियसली एजुकेशनल करिकुलम में इन चीजों को नहीं बताया जाए. बहुत अच्छे से पता चल गया. Yes. So many things have been kept incomplete in our lives. And there are many culprits. Our very education system is incomplete. Each and every textbook is incomplete, does not show you the other side of the coin. People are good by nature. Even the United Nations Charter on Human Rights starts with the line, all men are created equal. Well, to moderners, where are the women in the first place? Okay, I agree. You have used the word men as a gender neutral term. But is it a fact? Is it an experience of our lives that all men are created equal? No. Everybody is different. Just look around. If you have 2 kids, how different they are. Even if you have 2 dogs and you don't have kids, how different they are. Men may have been created by the equal, but they're certainly not created equal. They may be equal
in the eyes of law is another interpretation that you generally come across. That's what the UN Charter means. Again, there is something wrong with it. Chanakya addressed that problem long ago when he said that punishment will be directly proportional to your rank in society. We all know the four divisions of society that they created at that time. So if you belong to the fourth one, your punishment, let's say, is 10 rupees or 10 lashes or 10 days of imprisonment. Then if you read the Chanakya's Arthashastra, this guy had a habit of changing his name. Kautilya is none other than Chanakya himself. He also changed his name when he wrote the Panchatantra. So Pandit Vishnu Sharma is also Chanakya, and he himself is famous for his Chanakya Niti, which is never taught to us. लाइफ में चाणक्य नीति ही काम आती है. आप जिस मर्जी जॉब पे हो, जिस मर्जी प्रोफेशन में हो, जिस मर्जी जो मर्जी करते हो, so Chanakya advised in the Arthashastra that if you belong to the lowest rung on that system, that caste-based system of society, which still unfortunately continues in India and in every religion, no matter they tried their level best, hard, कि किसी तरह से हट जाए, नहीं हटा. Then the upper level, the third level, the punishment will be multiplied by 8. So if you are imprisoned for 10 days, your imprisonment will go up to 80 days. It will be 8 times the former. So by the time you come to the Brahmin, if he has committed a sin or a transgression or something which is agreed upon as a crime, then you can imagine his punishment is 8 to the power 3. It is 24 times the one that you give to the person lowest. But what do we do in societies? We give the same punishment no matter who commits the crime. And we should have been proud of a man like him to have written that text. We should have borrowed something worthwhile from there. Why do you need to punish that person so severely, the one who's in the top rung of the ladder? Because he's supposed to be the exemplar. So celebrating, the word celebrating, I'm using in the sense of completing the circle, the other side of the coin. Let me give you an example. Let me ask a question to the audience. Please name 5 things. Guru Pratap, since you are online, I can see you online. Preeti, since you are online, I think I should go offline now. Why should you go offline? इतने सारे questions मेरे को direct होने लग गए. नहीं, ये सिर्फ ये वाला direct कर रहा हूँ क्योंकि उसके बाद आपने direct करने हैं, सबों ने direct करने हैं. This is the last little thing that I have to say, and after that the house is open for questions. Okay. Please give me 5. No, since you are 2, so let me make it 6. Guru Pratap, you give me 6 words, and Preeti, you give me 6 words that randomly come to your mind. जो मर्जी आ जाए, जहाँ मर्जी से आ जाए. Okay. So I'll start with music, tea, books, laptop. Music. बस हो गए 3 आपके. Music, tea, books. थोड़ा और different कर लोगे, थोड़ा अलग-अलग subject से उठा लोगे. अलग-अलग area of life से. I said laptop also क्योंकि सामने laptop है. अच्छा ठीक है. Preeti, any 3 words you would like to come up with? Can I give phrases like work from home, exhaustion, okay. Worry about family? Okay. आपने सुन लिया GPS ने कौन से words दिए थे अभी प्रीति? नहीं. I was concentrating on my own words. Okay, GPS, can you fire them again? Yeah. So these are supposed to be random, right? Anything that comes to random, anything. So I thought कि प्रीति के आंसर्स बड़े वो थे ना लॉकडाउन के साथ. So I thought आप कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो बॉस. So I said music, books,
tea and laptop. इतने ज्यादा नहीं, 3 पे रखो. Music books and tea. Okay. Preeti and GPS. Ji. Is there an opposite to music? Noise. Yes. Is there an opposite to tea? Coffee. अच्छा, आप उसको opposite समझते हो. चलो, beverages में count होता है वैसे तो. ठीक है, yes, yes. Those who drink coffee are in America. Those who drink tea are in UK and India. Fine. What was the third word? Books. Okay. What's the opposite to books? Illiteracy. Ignorance. Yes. Depends on how you use the word. There is the other side. जी. और प्रीति आप खुद ही बोल दो. आपने जो phrases बोले थे उनके opposites. So I said exhaustion. Okay. Maybe there is exhilaration. Yes. And work from home. Yes. I mean, which is obvious. Don't work from office. Work from office. Go Work out from at home least. is the opposite of work from home. Well, the Work- exact opposite would and be not don't work from not office. work at all is also the opposite that all of Yeah. us are seeking. And I said worrying about family members who are not around here. Okay. What's the opposite of worrying? Worry meaning, I mean, having a certain sense of being, comfortable about the fact that people are okay where they are. Not to worry is also the opposite. Yeah, right? but To be at to peace. just have a sense of To be at peace about peace. it. Yeah. Yeah. To be centered about it. To be relaxed about it. Relax. It depends on how you use the word. The opposites will change. आप क्या मीनिंग रखते हो किसी वर्ड से. और तीसरा आपका दूसरा और तीसरा क्या था? तीसरा क्या था? I heard they तीन बोल दिए मैंने. अच्छा, तीनों बोल दिए. Okay. One was to do with the family that's not around and how one is worrying about them. Fine. Is there anybody who would like to raise a hand and give me a word which does not have its opposite? The first one was Arvinder Chamak. So maybe उनको unmute किया जाए. ये क्लास में फर्स्ट बेंच पे बैठने वाले बच्चे थे. जब देखो सबसे पहले ऊपर. चलिए, Like गुरलीन the का- first, गुरलीन ने कर दिया. the three words came to my mind was family, health, and economy. Okay. So family का opposite आप जानते ही हैं. Individual हो गया. Yeah. Right? या not having a family हो गया. Right? Bachelor हो गया. Right? The second word, sir, was Health. health. Oh well, illness, disease, stress, anxiety, depression, सब कुछ ही उसका opposite है. और The third one was economy. economy. Okay, what's the opposite of economy? In fact, it has already started in Fiji Yeah, Islands. yeah. That is what we are facing now. The depression. The acute, the negative growth. Yeah, I interpreted the word economy according to what came in my mind first. Yeah. उसका opposite मेरे मन में जो आया वो barter है. Good. ठीक है. The entire economy runs on something that I humans have agreed upon called money. और money का opposite barter है. Right. वो Fiji Islands में शुरू हो चुका है कल परसों. According to a news item I just read. No, that's right. There is no, I can give another 10 seconds to the audience to please come up with a word. Raise your hand. Gurleen can see you. Whether you raise it as, I think, an icon on Zoom or whether you raise it on video. Just to remind you can- कि आपके videos on हैं, we can see if you raise your hands. Yes. Gurleen can see all of you. No, it's Dr. J.K. Gulati. He's raising his hand. Okay. Uh, Yes, sir. Dr. J.K. Gulati. Gurleen, you need to unmute him. Yeah, Good okay. evening. Very Good good evening. Yes, sir. Am I audible? Yes, sir, you are. Yeah. Sir, I think it is society's lowly placed person who is in crisis and needs to be helped. That way you can take in the present times. I wanted words, sir. Words, okay. Yeah, three possible words from any subject, from any area of knowledge, field of You can understanding. take one word from administration, that is governance. Fine. Then other it is going to be society. Yes. Sociology.
and third you can take as a culture. Okay. So your first word was Governance. governance. We all know the opposite to it. आपको भी Yes. पता ही होगा. ठीक है. Chaos can also be the opposite of governance. Yes. Lopsided. Anarchy can be the opposite of governance. Right. Let's go to the second word, society. Society. What's the opposite of society? Society's opposite is just isolation, you can say, aloofness. Well, living in, living in the jungle by yourself, you're Yes, no longer yes. in a society. Exactly. Isolation. Yes. Isolation mein rehna, Yeah. right? And last word was Culture. culture. Since it is collectivity in Indian society, Hmm. and all of a sudden we are finding ourselves, I'm not just talking in context of Corona times, even for the last, this 1 decade, the kind of standards of society have gone down in terms of social values or human values, you can say. Yes, sir. So no matter which subject we go to, in fact, none of you has gone to the deepest of all subjects. The deepest of all subjects is physics. And within that, the deepest of all areas is astronomy. If there is a universe, then we have an opposite for that also. And that is a multiverse. We don't know whether we are living in a universe which is the only one. We have the theories ready now. The experimentation will begin in another 10 years. It has already begun, actually, to find out whether there are universes. So we have a different word for that, multiverse. Let's go to the word matter. Physics का सबसे deepest word matter है. उसका भी opposite है, antimatter. उससे भी deep चले जाओ, energy है. The absence of energy, nothing, is the opposite of energy. Energy means the presence of something, whatever that thing is. This is what I meant by celebration. Celebrating means let's come full circle. पूरा circle आएगा तो हमें जिंदगी समझ में आएगी. We will be able to live life. You see, in psychology, there is a famous saying that people live till they die, you know. They are born, right? All of us know that we are born, right? We go through a growth process, aging, everything. And then comes the final day when all of us have to leave. I think it was probably Benjamin Franklin or somebody who said there are only two things which are certain in life. And those two things are, one is death and the other is income tax. Okay, income tax से तो बच जाएंगे, लेकिन किसी ना किसी तरीके से सभी बच जाते हैं. लेकिन डेथ से कोई नहीं बच सकता है, कभी नहीं बचा है. सब लोग जिंदा रहते हैं पैदा होने के बाद, मरने तक. जीना सीखना पड़ता है. You have to learn how to live. We exist once we have taken birth, we exist till we die. Psychology, subjects like psychology, not just psychology by the way, every field of human endeavor, every field of human knowledge can actually teach you how to live and not just exist till you die. ये फर्क डालते हैं ये जितने भी fields of knowledge है हमारे, जो मर्जी हो, वो डायरेक्टली डालते हो, इनडायरेक्टली डालते हो, डालेंगे जरूर वो फर्क. और एक आखिरी बात कह दूं, फिर आप जिसको जो सवाल पूछना है पूछे. आपके लिए हाउस ओपन है फिर, कि ये लैंग्वेज का ट्रैप है, इससे बचिए. अगर कोई कह देता है फूल नहीं थे वहां पे, तो हमारा माइंड एकदम से जंप करता है, अच्छा फिर कांटे ही होंगे. जीपीएस अच्छा बंदा नहीं है,
तो फिर बुरा ही होगा। ठीक है, ऐसे ब्लैक और व्हाइट में चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। Everything exists in shades of gray. Those words we hardly ever use, we hardly ever pay attention to. Our minds, this is a default setting of our minds कि हम लोग एकदम से दूसरी साइड जंप करता है हमारा माइंड। फूल नहीं थे का मतलब ये थोड़ी है कि वहां पे कांटे थे। दुनिया भर के फूलों के साथ कांटे नहीं होते। वहां पत्थर भी हो सकते हैं, वहां पानी भी हो सकता है, वहां और फूल हो सकते हैं। उसके बारे में कब सोचेंगे हम? सो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हमारी जिंदगी का हिस्सा है। They are the other side of the coin. One side we all seek, one side we all know, one side we all fall for. The good. Such Chit, Ananda, truth, happiness, peace, power, plenty. बोलते जाओ सारे वर्ड्स। हम भूल ही जाते हैं कि जितना ज्यादा आप हैप्पीनेस को सीख करोगे ना, जितना आर्ट ऑफ लिविंग जैसे प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करोगे, तो वहां से कुछ नहीं सीख के आओगे। एक ही चीज सीख के आओगे, वो आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है, वो आर्ट ऑफ लीविंग है कि बाकी सबों को छोड़ के मेरे पास आ जाओ, मैं सिखाऊंगा तुम्हें कैसे लिविंग करते हैं। क्या सिखाओगे आप हमें? आंख बंद करके नाम जपने, डांस करने। I'm not saying it for that one individual only, I'm saying it for everybody. I'm just using one example. So many people run so many, programs जिसका कोई सर पैर नहीं। तो सबसे ज्यादा काम की सीखने वाली बात को मैं सुदर्शन फाकिर की एक गजल के एक शेर में समअप करता हूं। कोई समझेगा क्या राज गुलशन, कोई समझेगा क्या राज गुलशन, जब तक उलझे ना कांटों से दामन, जब तक उलझे ना कांटों से दामन। The house is open for questions. सिमर जी, आप तो से लिटरेचर और फिलोसफी में चले गए। हाँ जी, मैं क्या आप साइकोलॉजी से पहले फिलोसफी में चले गए, फिर पोएट्री में चले गए? डिसऑर्डर्स है मेरे, क्या करूं? ये भी पता चलता है कि we can't also do without poetry and books and music. जी जी। अच्छा, दो बातें तो मैं ही कर दूं पहले, उसके बाद मैं ऑडियंस के पास जाता हूँ। हम स्ट्रेस की बात कर रहे थे कि स्ट्रेस हो जाता है हमें कि हमारे पास टाइम की कमी होती है। क्या हो जाता है? टाइम की कमी होती है तो हमें स्ट्रेस हो जाता है, राइट? दैट्स व्हाट यू सेड इन द बिगिनिंग। यस यस यस। जब काम ज्यादा है और टाइम कम है। और ये इस तरह भी होता है कि जब हमें कोई गाड़ी पकड़नी होती है, प्लेन पकड़ना होता है, टाइम बहुत होता है, पर फिर भी लोगों को स्ट्रेस शुरू हो जाता है जी। और दूसरी एंजाइटी जो बहुत रियल है वो है, जैसे हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, बैंकर्स हैं, ये सारे काम पे जा रहे हैं, दे आर डीलिंग विद डिफरेंट पीपल ऑल थ्रू द डे। तो इनको फिर इनकी जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, दैट इज मच मोर रियल एंड पैल्पेबल देन दैट ऑफ कैचिंग अ ट्रेन और अ प्लेन। पर वो भी तो स्ट्रेस है, जिसको होता है बहुत होता है। जी। See, our anxiety, stress, anxiety, sadness, depression, जिस मर्जी इमोशन का नाम ले लीजिए, हमारे और फ्रंटलाइन वर्कर्स में सिर्फ डिग्रीज का फर्क होगा। हम उनके लिए वर्ड्स नहीं चेंज कर देंगे। ठीक है, हमारे डिग्रीज का फर्क रहेगा। हर इंसान के साथ यही है, डिग्रीज का फर्क। ठीक है, राइट। सो जो सॉल्यूशंस यहाँ काम करेंगे वो ही एक डिग्री, मतलब वहां पे भी काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि वहां नहीं काम करेंगे। ठीक है जी। उनको अब ऑब्वियसली स्ट्रेस मींस दैट यू आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड एक्चुअली। रियली स्पीकिंग, यू आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। The more the governments are organized, the more the hospitals are organized, the more they have a immediate one learning, I think, which the entire world has now come to come to the realization of, is that we must have first response teams in all the countries, everywhere, because we don't know where the next outbreak will start from. है कि नहीं? जी जी, बिल्कुल। ऑर्गेनाइज नहीं हो तो स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस को कम करने का तरीका है कि आप पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड हो, राइट डाउन टू द लेटर टी।
right down to dotting all your I's, crossing all your T's. You have to be as organized as possible. जितने आप organize हो जाएंगे उतना ही stress कम हो जाएगा. साल के शुरू में पढ़ना शुरू तो कहाँ से stress आएगा यार? एंड 3 बार syllabus revise कर लोगे तो stress आएगा क्या? थोड़ी सी stress होनी चाहिए. देखो, थोड़ा सा stress होना चाहिए, थोड़ी सी anxiety एग्जाम की होनी चाहिए. हाँ, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, इतनी एंजाइटी नहीं होनी चाहिए कि वहां जाते ही आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है. अगर हो जाता है तो देन यू नीड टू कंसल्ट अ प्रोफेशनल. Okay. So if the stress anxiety levels are debilitating in some way, incapacitating in some way. Now, obviously, since I'm dealing with a normal audience, and I told you 90% of psychology is to do with you and me, all of us normal individuals, then one of the things we will have to keep in mind is कि हम अपनी लाइव्स को ऑर्गेनाइज कर लें टाइम के हिसाब से. आप जितना ऑर्गेनाइज कर लेंगे, अब सब्जियां आती हैं तो उनको धोने का ऑर्डर भी मुझे समझ में आ गया कि किस ऑर्डर में धोना है ताकि एक ही बकेट में धुल जाए वो. ठीक है, अलग अलग बकेट्स ना रखनी पड़े. बर्तनों को किस ऑर्डर में धोना है, ठीक है, किस ऑर्डर में. कुछ चीजें जहां से निकाली हैं वहीं वापस रख दोगे तो कभी आपकी जगह मतलब अलमारी खराब होगी नहीं होगी. ठीक है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं. स्ट्रेस को ऐसे कम करोगे, एंजाइटी. एक और चीज, because this is an open forum and because this is a public forum, I can obviously not address, I didn't want to address also, and I may not be able to address also, because every problem has 3 levels, 3 mote levels, just for the sake of understanding. शराब से बड़ी आसानी से समझ में आ जाते हैं. एक वो ऑडियंस है जो शराब नहीं पीती है. ऐसा तो नहीं है कि इनको प्रॉब्लम नहीं होती, काफी प्रॉब्लम होती है. ठीक है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स होती हैं. इनको जो लोग पीते हैं उनको लेके बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं. और हमारे पंजाब में तो एक पोएम की एक लाइन भी है कि रिंद इतने गुनाह नहीं करते जितने परहेजगार करते हैं. रिंद कहते हैं पियक्कड़ों को, पीने वालों को. पीने वाले इतने गुनाह नहीं करते हैं जितने परहेजगार करते हैं. उनकी टाइम विंडो कम हो जाती है ना. हाँ, वो आराम से उनका फोकस बन जाता है, चुप करके बैठ जाते हैं घर में. हाँ, एग्जैक्टली. देखा था कैसे ऑर्डरली खड़े थे लाइंस में अभी. बिल्कुल जी, बिल्कुल. और सब चीजों के लिए लोग लाइन में नहीं खड़े हुए, ढंग से नहीं खड़े हुए, सेफ सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन किया, बहुत कुछ नहीं किया. दूसरा वो लेवल होता है जिसको अब पीने की आदत पड़ गई है और थोड़ा थोड़ा कर करके उसकी हैबिट बनती जा रही है, उसका टॉलरेंस लेवल बढ़ता जा रहा है और उसका खतरा है कि ही विल क्रॉस ओवर इनटू द 3rd स्टेज. इसको साइकोलॉजी में एक टेक्निकल वर्ड अगर इस्तेमाल करें तो न्यूरोसिस कहते हैं. वैसे आज की डेट में हम इस्तेमाल नहीं करते हैं ये वर्ड, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम सेइंग कि एक वो लेवल है बीच वाला. पहले लेवल के लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है. एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी, एग्जिस्टेंशियल स्ट्रेस, एग्जिस्टेंशियल सैडनेस, एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन तो लाइफ का हिस्सा है, होके रहेगा. घबराने की कोई जरूरत नहीं, होके रहेगा. आपको अच्छा लगे ना लगे छोड़ो उन सब बातों को, ये होके रहेगा. ये कभी नहीं जाएंगे जिंदगी से. पैदा हो गए हो ना. गालिब ने क्या कहा था एक जगह पे, एक शेर उसका याद आ रहा है मुझे कि एक सेकंड, just give me a second. न था कुछ तो खुदा था, न था कुछ तो खुदा था. कहते हैं कि जब कोई चीज नहीं थी यहाँ पे तो खुदा था. कुछ ना होता तो खुदा होता. The day the universe disappears, उसके बाद क्या होगा? शायद खुदा ही होगा. ये मैंने सुना है. गालिब कह रहा है कि ना था कुछ तो खुदा था और कुछ ना होता तो खुदा होता. अब सुनिए, डुबोया मुझको होने ने. क्या किया? डुबा मारा मुझे पानी के अंदर. डुबोया मुझको होने ने, पैदा हो गया बस. ये सबों के लिए लागू है, गालिब के लिए भी लागू है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी लागू है ये शेर कि डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता. अब उसने अपने स्ट्रेस का, उसने अपनी एंजाइटी का, उसने अपनी सैडनेस का, उसने अपनी डिप्रेशन का, और वो कई बार गुजरा इन सारे इमोशंस में से.
70 साल की उम्र में 7 बच्चे पैदा हुए, कोई भी 12-15 महीने से ऊपर नहीं रहा. Imagine the stress, imagine the depression he may have gone through. So this is part of our life. Second level is known as neurosis. So I can talk about the existential and the neurosis part. The third part is known as clinical or psychosis में आप क्रॉस कर गए हो. आप इतनी शराब पीने की आदत पड़ गई है कि आपको सुबह पता लगता है कि कौन घर लेके आया था. अब आप पियक्कड़ बन चुके हो. वो क्वेश्चंस शायद मैं यहाँ पे नहीं आंसर कर पाऊंगा, क्योंकि वो फिर प्रोफेशनल आंसर्स डिजर्व करते हैं. उसके लिए केस हिस्ट्री लेनी पड़ती है, तभी हम आंसर कर सकते हैं. जनरल दोस्त बता देगा कि मैं ही लेके आया था तेरे को घर. हाँ जी, मैं कहा दोस्त बता देगा तेरे को मैं ही घर लेके आया था. हाँ दोस्त बता देगा, लेकिन एक बार बताएगा, 2 बार बताएगा, तीसरी बार तो दोस्ती से भी जाएगा. चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. एंड मेरे एक दो क्वेश्चन और. First me. You want to go first? Okay. आप तो वैसे अनम्यूटेड हो. हाँ, नहीं, she's इसीलिए not I'm me. taking advantage ना. But we have got many audience questions already. 3-4 हैं already with हाँ, hands raised. that So was I'll just say expected. quickly. For me, it's just a loss of the old life. You know, I'm grieving because of that. कि मेरी पूरी जिंदगी काया पलट हो गई. कहीं कहाँ गई? Where is that life that I lived? It has disappeared. And on every level, I am mourning it and I am grieving for it. Yes, there are blue skies and there are birds and peacocks and everything. Lekin, I can't even go out for a coffee. Fine. Big stress. But I think we can take audience questions. Gurpratap, please. We have a question by Ruma. Ruma. Gurleen, you have to unmute her, Ruma. Good evening. It was very nice to hear you, Dr. Simar. Thank you. I am from the field of education. I have educational psychology, let me put it that way. I have a, we've only been hearing about the concept of the new normal. Everywhere you're hearing about something, this new normal that's going to emerge after the pandemic, after the lockdown. Now, if at all there is a new normal, we don't know. What kind of behavior changes can we expect in children? Or if at all, do you think there are likely to be behavior changes? It's something that's been on my mind for a while, and I thought I would use this forum to ask you. Habit, madam, एक ऐसी चीज है, आप भी जानते हो, as an educational psychologist, I can give you a short answer in just one sentence. Old habits, D-I-E, old habits, D-I-E hard. We all know that. And here is the reason. You will have your answer in just a single sentence. Old habits, D-I-E hard, because they D-Y-E hard. Okay. So as such, we should not cater for any redirection or reinventing of. आप एक बार खुलने तो दो लॉकडाउन पूरी तरह से, आप एक बार खुलने तो दो, सारी चीजें नॉर्मल पे वापस तो आने दो, आ जाएंगी. There is no doubt about it. आएंगी. I mean, there's such a hype now about the new normal. इतना hype. ये न्यू नॉर्मल सिर्फ लॉकडाउन के पीरियड के लिए है. Till the time the advisories are there, yes, there will be some changes, but I don't think they are going to exceed anything more than 15 to 20%. All right. Thank you. Human beings हैं. We are creatures of our habits. हमारी habits दौड़ के वापस आएंगी. ठीक है, बड़ी full speed पे वापस आएंगी. देखना, सब के सब वही चीजें करेंगे फिर से. कोई दिक्कत नहीं है. इतनी देर आपने उसको बंद रखा है, वो क्यों नहीं, there was a British Airways का ad था, उसकी opening line थी, it is the same the world over. आपको 3 लाइनों में देखना कैसे उसका आंसर एक एडवर्टाइजमेंट से भी मिल जाता है कि इट इज द सेम द वर्ल्ड ओवर. चिल्ड्रन वॉक टू स्कूल. क्योंकि आप एजुकेशनल फील्ड से हो, इसलिए आपका तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस रहा है इन चीजों का. इट इज द सेम द वर्ल्ड ओवर. चिल्ड्रन वॉक टू स्कूल. चिल्ड्रन वॉक टू स्कूल. Here is the third sentence, and look at the kind of copywriting some guys can really do. It is the same the world over. Children walk to school, they run home. दौड़ के जाते हैं घर.
Okay, thank you Ruma for asking that, and thank you Simar for replying to that. अब मीना बग्गा जी का हाथ दिख रहा है मेरे को. She has raised her hand. मीना बग्गा जी. Yes, ma'am. आवाज अनम्यूट करनी पड़ेगी गुरलीन. Not Minna, it's Minna's mother, Mrs. Bagga. I'm from literature. मैं क्वेश्चन है कि आपने बाइनरी ऑपोजिशंस की बात करी थी, तो जो वेस्टर्न मेटाफिजिक्स है वो तो सारा इसी पे बेस्ड है, क्या है या क्या नहीं उसकी ऑपोजिशन पे. तो आपने कहा कि हम बाइनरी ऑपोजिशन में चले जाते हैं और उसके बाद हमें प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम लोग इन बिटवीन जो ग्रे एरिया उसको समझ नहीं पाते हैं, और इसके कारण कई बार हमें एंजाइटी हो जाती है. एंजाइटी के बाद जैसे फ्राइड ने कहा है कि हम दो तरीके अपनाते हैं, एक तो प्रैक्टिकल वे होता है, एक फिक्शनल वे होता है टू एस्केप रियलिटी. और फिर आपने बात करी कि मेडिटेशन में हम चले जाते हैं टू आर्ट ऑफ लिविंग और ऐसी चीजों के ऐसे प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं. तो और ये चीजें हमें फायदेमंद नहीं होती हैं. तो माय पॉइंट इज कि हमें कौन सा वे इख्तियार करना चाहिए so that we can come back to reality and face it and have learn the practical way of handling life. तो उसमें मैंने आपसे न्यूरोसिस और साइकोसिस के बारे में पूछना था, वो आपने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है. थैंक यू वेरी मच, इट वाज एन एक्सीलेंट टॉक. तो अगर मेरे को आप ये बात बता दें कि जैसे हमने बाइनरी ऑपोजिशंस को डीकंस्ट्रक्ट करके अगर लाइफ में ग्रे एरियाज को एक्सेप्ट कर लें और एक्सेप्ट करने के लिए हमें वर्क करना पड़े, तो इज इट ए सॉल्यूशन फॉर अवर रिमूवल ऑफ एंजाइटी और स्ट्रेस और व्हाटएवर इट इज? देखिए, रिमूवल तो नहीं होने वाला है. yes, वो तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि रिमूवल तो आप भूल जाइए. ओके, ठीक है. रिमूवल की जो हमारी जिज्ञासा है ना, रिमूवल की जो हमारी लॉन्गिंग है, रिमूवल की जो हमारी एक विश है, एक डिजायर है, ये क्रिएट की गई है. ठीक है. ये सब ये हैप्पीनेस के प्रोग्राम्स बेचने के लिए, ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का बकवास बेचने के लिए लोगों को. ठीक है. ये दुनिया भर की चीजें बेचने के लिए लोगों को. Exactly. अब जैसे डॉक्टर्स के क्वैक्स होते हैं ना, एक तो होता है जिसने पूरी मेहनत करके एमबीबीएस किया है, पूरी मेहनत करके उसने एमडी किया है, एमएस किया है, जो भी किया है, 10-15 साल लगते हैं उसको करने में, तब जाके वो डॉक्टर बना है, और अच्छी जगह से. मैं आज के डॉक्टर की बात नहीं कर रहा जो प्राइवेट कॉलेज में कैपिटेशन फीस दे के बन सकता है. ठीक है. और हम लोग बाय नेचर सब लोग डॉक्टर्स होते हैं. ठीक है. बाय डिफॉल्ट हमारी एक और डिफॉल्ट सेटिंग है कि आपने देखा होगा जब भी आप बीमार पड़े हो, जो भी आया है आपके पास, उसने कोई ना कोई दवाई, कोई ना कोई डॉक्टर का नाम, कोई ना कोई नुस्खा जरूर दिया आपको कि मेरे लिए तो ये काम कर गया था, तुम भी यही करो. मैंने एक थ्रू माय मेडिटेशन एंड थ्रू यू नो लाइफ एक्सपीरियंस एक चीज लर्न करी है कि हमें हर स्ट्रेस का या एंजाइटी का ऑर्गेनाइज तरीके से सोल्यूशन निकाल लेनी चाहिए. वन बाय वन वी टेक इट ऑफ. करेक्ट. देन यू नो वी बिकम स्ट्रेस फ्री. और मेरे को जो बहुत सा फिलॉसफी पढ़ने के बाद ये फील हुआ है कि जो निर्वाणा है वो एक स्टेट ऑफ नथिंगनेस है. स्टेट ऑफ नथिंगनेस व्हेन नथिंग बॉदर्स यू. दुख और सुख एक जैसे लगते हैं जब, that is the state of nothingness. आपको जब आपको ये state आ जाती है तो I think stress, anxiety and other things, you know, they lose their effect. I don't know whether you'll agree with me or not, but in my 75 years of life, I have learned this. Okay. What I can add to what I said earlier, जो आपने binary की बात की थी, कि कोई भी चीज ले लीजिए, ये मेरा सेल फोन ले लीजिए, राइट. इसको, इस साइड को अगर मैं कोई नाम देता हूँ, ठीक है, लाइक एनी कॉइन, राइट. दिस इज the flip side has another name, you know, that it has another. No, can you even imagine in your mind an inside without an outside? Can you even imagine, can we even imagine an inside without an outside? Definitely no. So आप जो मर्जी, आप हैप्पीनेस सीख करेंगे, अनहैप्पीनेस दौड़ी चली आएगी आपके पास. Right. आप अनहैप्पीनेस से छुटकारा. Okay. लोगों को गुरुद्वारे में जाके, मंदिर में जाके ही क्यों इतने थॉट्स आते हैं? बाहर नहीं आते, वो मेडिटेशन में ही क्यों आते हैं?
क्योंकि आप बहुत जोर से एक साइड को खींच रहे हो अपनी तरफ, तो दूसरी साइड क्या बच जाएगी? वो भी तो साथ ही आ जाएगी। No, I stressed out that the state of nothingness, no thoughts in the mind, that is the place, that is what we are aiming at. I think I have to interrupt you. Maybe, Yeah. maybe. Yeah. So maybe we can come back to this later on. Simbarji, I'm sorry to interrupt this. Okay, go हमारे ahead. पास we have a question by Jasmeena Sasdeva. Jasmeena? Sir, I would like to ask, you are saying that task and time mismanagement gets us stress, but these days generally it's lots of time and no work that is causing stress. How does one deal with that? Revive your hobbies. If you had a few earlier, or you still have a few, right? I mean, revive all your hobbies, or my second answer will be cultivate new ones, plant new ones. नई चीजें कर लीजिए, टाइम को तो भरना है ना किसी तरह से आपने। सर अब पर time वही ज्यादा वाली हो गया। बात जो प्रीति गिल ने बोली कि कुछ कर ही नहीं सकते, हॉबीज भी हैं तो उसको करने के लिए भी प्रॉपर सिस्टम चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा, so that becomes very frustrating and stressful. दुनिया भर की हॉबीज के लिए आपको घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। दुनिया भर की रीडिंग के लिए क्या घर छोड़ने की जरूरत है? लिसनिंग टू म्यूजिक के लिए और इवन लर्निंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑनलाइन के लिए क्या घर छोड़ने की जरूरत है? नहीं, I'm concerned about the men mainly. हाँ, Men are going through a lot of crisis, stress. You can learn about men can learn about women. There are enough psychologists. मैं अकेला नहीं हूँ, दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट ऑनलाइन हैं, दुनिया भर के डॉक्टर्स ऑनलाइन हैं, दुनिया भर के लोग ऑनलाइन हैं। ठीक है जी, आपको हेल्प करने को रेडी है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, उनके क्रेडेंशियल्स चेक कर सकते हो, राइट? सीखिए ना, शुक्र मनाइए एक बात का कि ये 1918 का वाला ना तो जमाना है और ना वो फ्लू है। वी हैव टेक्नोलॉजीज विद अस लाइक इंटरनेट, लाइक द टेलीफोन। देयर वाज नो टेलीफोन इन 1918, देयर वाज नो इंटरनेट, ऑब्वियसली देयर वाज नो कंप्यूटर्स, वी कुड नॉट गेट इन टच। भूलो, अब तो आप बात भी कर सकते हो, इवन टॉकिंग टू समबडी, इवन टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, which I'm sure you can talk endlessly, you know, किसी पुराने दोस्त के साथ या स्कूल मेट या कॉलेज मेट या यूनिवर्सिटी मेट के साथ घंटों बात कर सकते हैं हम सब के साथ। करिए ना, Okay, उठाइए। आपकी लिस्ट में कितने होंगे, फोन की लिस्ट में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं? Right, we can just एक एक करके रैंडमली फोन कर लीजिए। Right. आधे कॉन्टैक्ट तो माजा हाउस के मेंबर्स के होंगे। आप माजा हाउस देख लीजिए कितने लोग हैं, प्रीति के पीछे पड़ जाइए, जीपीएस के पीछे पड़ जाइए, गुरलीन के पीछे पड़ जाइए, दो इन सबों के नंबर। हम दोस्ती करना चाहते हैं इनसे, बंदे लाइक माइंडेड हैं, ठीक है, क्यों नहीं? अगला क्वेश्चन है बाय आरजू नागी, इन्होंने टाइप कर दिया था तो मैं पढ़ देता हूँ। What's the best way to cure stress? First, accept it as part of your life. ठीक है, एक्सेप्ट इट फॉर एवर। आज के लिए नहीं, सदा के लिए एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, ये व्हाट इज द बेस्ट वे, क्या था आगे? टू क्योर स्ट्रेस। क्योर नहीं होगा बॉस। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासेस जरूर चलती हैं, स्ट्रेस क्योर की आपने कभी भी सुनी नहीं होगी। ठीक है, मैनेज करना सीख सकते हो आप, कोप करना सीख सकते हो, उससे डील करना सीख सकते हो। भाई ऐसा थोड़ी है कि बुद्ध को कांटा नहीं चुभता है। जस्ट टू आंसर मीना बग्गा's क्वेश्चन आल्सो टू सम एक्सटेंट, निर्वाण का मतलब ये नहीं है कि थॉटलेस हो जाएगा बंदा, पेनलेस हो जाएगा बंदा, ये हो जाएगा बंदा, वो हो जाएगा। बुद्ध को शायद हमसे ज्यादा कांटा चुभेगा, उसको ज्यादा एहसास होगा हर एक इमोशन का, हर एक फीलिंग का, तभी तो वो आपकी बात में से बात पकड़ लेता है और उसका जवाब दे देता है। I once read a book by Khalil Gibran, the Lebanese American author, very famous for his book The Prophet. But this quotation is from his book Sand and Foam. And listen to it very carefully. अगर आप इसको गोल्ड में भी लिख दोगे ना तो शायद गोल्ड की कीमत कम रहेगी और इस स्टेटमेंट की कीमत ज्यादा रहेगी।
और उसने लिखा है सैंड एंड फोम में, देयर इज वन थिंग अबाउट आवर ब्रदर क्राइस्ट. Gibran was a Maronite Christian, a sect of Christianity which is prevalent in the Middle East. There is one thing about our brother Christ that has not been mentioned in the Bible. And let me tell you, these things have not been mentioned about each and every other prophet also, each and every other messenger also, each and every other guru also. They're in the holiest of holy texts that people consider holy. There is one thing about our brother Christ that has not been mentioned in the Bible, and that is that Jesus was a man. That's all. Okay. So next question now. वो Indu man also से had a Superman question, हुआ no? है. Indu had a question. इंदु, मैं उन्हीं का नाम लेने लगा था कि Is she there or gone? No, she's there. She's there. Gurleen. इंदु आंटी. Yeah. Yeah. जी, हाँ जी बोलिए. Actually, you know what? Very personal question, but you know, the fear of losing your loved one is always in my mind, because I lost my mother 3 years ago, and I'm holding on to my father as if I never let him go. And constant, even at midnight, I come down to see into his room. You know, the maids are away; they're not here, obviously. So I have that fear. Okay, when I go down, I hope he's okay. You know, and this is literally killing me inside. I didn't want to actually. I just want to ask him, what can I do to control my emotions and hold on to myself? You know, that's it. Yeah. The vaccines which have already been discovered and they have been shared with us, please observe them as religiously as you can, both in letter and spirit. Which are the vaccines? Stay at home is a vaccine till the real one is discovered. Maintain safety distances, right, is a vaccine. And these are the advisories of nothing less than the World Health Organization. I see them as vaccines, right? First vaccine, stay at home. Do not leave home unless absolutely necessary, absolutely warranted. Do not leave home. Your home is a safe place. Do not leave. Do not let anybody enter unless, again, absolutely necessary. They are the ones, you know, you have to ensure that they are following the protocol for disinfection right outside the door before you let them in also. Okay, आप खुद मत बाहर निकलिए और किसी को अंदर घुसने देना इस वक्त will act like a vaccine. Okay, पहली वैक्सीन तो वो हो गई. दूसरी वैक्सीन, maintain your social distancing, वो भी एक और वैक्सीन का नाम ही है. Social distance, अगर बाहर जाते हो तो मास्क पहन के जाइए, ग्लव्स पहन लीजिए अगर हैं तो. क्लॉथ मास्क will also do. नहीं है N95 मार्क, डोंट वरी ओवर इट. तीसरा वैक्सीन भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दे दिया है, दुनिया भर के डॉक्टर्स ने दे दिया आपको. आप गेस कर सकते हैं क्या है वो? ये सारी एडवाइजरीज हैं जो हमें मिल गई हैं. स्टे एट होम, राइट? इफ यू स्टेप आउट with a mask, maintain your social distance, disinfect your veggies, your groceries outside your house first, then bring them in. The protocols are all there, how to do everything, right? You are worried. There are other vaccines. So all the advisories, if we can observe them, all of us will survive. All of us will move out of this. It is ये अपना bold step लेना, मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है, रिस्क तो रिस्क है, आप लीजिए, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना सबसे अच्छा रहेगा. और आखिरी जो साइकोलॉजिकल वैक्सीन है, आप अपने आप से खुद पूछिए. हालांकि ये पर्सनल सवाल है, मैं इसको पर्सनली आंसर करना ज्यादा ठीक समझूंगा, लेकिन मैं उसको जनरल एस्पेक्ट में आंसर कर देता हूं, बिकॉज हर किसी के कारण अलग अलग होते हैं.
जब तक मैं आपके कारण पे नहीं पहुंचूंगा आपका हल नहीं मिलेगा आपको. Because you see, in some respects we are like all other persons on this earth. All of us are human beings. Second thing, in some respects all of us are like some other persons only on this earth. You are a female, I am a male. That is one difference. Some of us in some respects are like all of us on this earth. Some of us in some respects are like some of us only, but some of us are in some respects like nobody else on this earth. Not even if you have a twin sister or a twin brother. So आपका जो प्रॉब्लम का जड़ है ना वो कहीं और है. मैं उस पे नहीं आना चाहता अभी. उसके लिए एक आंसर दे के आपको छोड़ देता हूं, और वो ये है कि just ask yourself, is worrying helping me in any way whatsoever or not? क्या वरी से चीज हल हो जाएगी या कुछ करने से हल होगी? आप नीचे आके चेक करते हैं, इससे बढ़िया क्या चीज है? आपने चेक कर लिया एक बार, ठीक है, आप दूसरी बार भी आ गए, अच्छी बात है. लेकिन आप कितनी बार ऊपर नीचे या एक कमरे से दूसरे कमरे जाएंगे? उनकी नींद भी तो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं. उनकी पीस ऑफ माइंड या स्लीप भी तो डिस्टर्ब कर रहे हैं. उनको भी स्ट्रेस आ जाएगा कि हाय राम, ये मेरे को लेके इतनी स्ट्रेस्ड आउट है. जो कर सकते हो वो करिए. वो ऑलरेडी आपके पास, आप सिर्फ WHO की साइट पे चले जाइए, आपको घर पे किस चीज को कैसे करना है सारा कुछ लिखा हुआ है. मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं तो सारी चीजें बता दूंगा आपको. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. Thank you so much. Thank you. Thank you, Simaji. And today I think the last man standing with the raised hand is, of course, the first man, Chamak Sir. So he has a question for you. Chamak Sir. Simaji, it was a very interesting session. And I must compliment the Maja House and of course you for guiding us all. But now my question is a very complex question, which is based only on those three words which came to my mind: the family, health, and the economy. As you said, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ. All right, I go with it. You lead a very meticulous life. You do everything in a very designed way, in a planned way, and you execute everything in a systematic way, so that you don't fall in trouble. Now my question is, many a times external forces, they keep on sending you the stress. मैं अपने घर दे विच सारा कुछ ठीक करके रखिया होया है, and I'm very particular about it. The moment I step out, external forces ने. Now my question regarding the family, the health and the economy, मैं ultimately ते घर दे अंदर ते सारा कुछ नहीं कर सकता ना. मैनू घर दे बाहर step out करना पड़ेगा. सोसाइटी च मूव करने वास्ते, मैनू इकोनॉमी चलाने वास्ते मैनू किते ना किते गवर्नेंस दे वो फैक्टर्स नू सामने रखना पड़ेगा. मैं बहुत क्लियर हो सकता, मैं निर्वाणा दी थ्योरी नू भी फॉलो कर सकता, लेकिन अल्टीमेटली मैं लीगल साइड्स नू सारा कुछ कंप्लाई विद करन तो बाद भी मैं सराउंडिंग्स उन्हां दे विच ही डील कर रहा ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਕੀਪਸ ਯੂ ਬੋਦਰਿੰਗ ਐਂਡ ਪਿੰਚਿੰਗ ਯੂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਭ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਚੁਭਿਆ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ I'm not talking about myself, I'm talking about the people who lead a very meticulous, very planned, very clean life. Still, they are made part of that. और वो stress नू किस तरह deal किया जा सकता है, और वो surroundings तो अनु किमें ना bother करन. Like you said, कि you start living with the concept कि the stress is not going to go anywhere. Start living with it. But now ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ clean mind ਨੂੰ change ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, but then you can't live with those surroundings. Now it is a very complex situation. ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, family, health and economy. Yeah, my question. आपने 5 योग के नाम तो सुने ही होंगे सर. हठ योग जो बाबा रामदेव जैसे करवाते हैं, ठीक है, ना भी करो तो भी चलेगा, ठीक है.
फिर उसके बाद 3 योग जिसके बारे में लगभग सारी दुनिया जानती है, राइट? भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, राइट? फिर एक रोग है जिसके योगा है जिसके बारे में although there is a chapter in the Gita, nobody bothers to read it, and some of the people don't even know that it exists. क्योंकि जब तक उठाओगे नहीं, जब तक वर्ड फॉर वर्ड पढ़ोगे नहीं, तब तक वो दिखाई नहीं देगा वो चैप्टर। मैं उस पर आता हूं। इसमें सबसे पहला, ये आपने एनवायरमेंटल स्ट्रेस के ऊपर कहा कि एनवायरमेंटल स्ट्रेस का क्या किया जाए, जो बाहर से अंदर की तरफ को आता है, या हम जब बाहर से घर लौटते हैं तो अपने साथ लेके आते हैं। एक ग्रीक फिलोसोफर था एपिक्यूरस, उसने एक जगह पे कहा है कि इट इज नॉट थिंग्स दैट डिस्टर्ब अस। चीजें हमें डिस्टर्ब नहीं करती, इट इज आवर व्यू ऑफ देम दैट डिस्टर्ब्स अस, इट इज आवर बिलीफ ऑफ देम दैट डिस्टर्ब्स अस, इट इज आवर ओपिनियन ऑफ देम दैट डिस्टर्ब्स अस। कहने का मतलब, आपके सवाल के आंसर की तरफ बढ़ते हुए उसकी हेल्प ले रहा हूं मैं, कि आपका कहीं ना कहीं मुझे अकेले बैठ के एग्जामिन कराना पड़ेगा। Like Shakespeare said in one of his plays, he put the words in one of the characters' mouth, the fault, dear Brutus, is not in our stars, but ourselves. The fault, dear Brutus, is not in our stars. बाहर नहीं है, अंदर है, हमारे अंदर है। तो वो कहीं ना ये बातें सबों के लिए कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं कह रहा। सिर्फ आपका सवाल नहीं है, आप पता नहीं कितने लोगों के लिए सवाल पूछ रहे होंगे। एनवायरमेंटल स्ट्रेस का क्या किया जाए जिसका मैं कारण नहीं, ठीक है? आई एम नॉट वन ऑफ द पर्सन्स हु इज डूइंग इट और कंट्रीब्यूटिंग टू इट इन एनी वे व्हाटसोएवर। आई एम लीडिंग अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, आई एम लीडिंग अ डिलिजेंट लाइफ, आई एम फॉलोइंग द एडवाइजरीज ऑफ WHO, सब हो रहा है, सब ठीक है, क्या करूं मैं? जो चीज के ऊपर पहला सवाल यहाँ पे पूछने वाला ये है कि आर दोज थिंग्स अंडर माय कंट्रोल और नॉट? बस ये सिंपल सा सवाल है जो एपिक्यूरस कहता है कि सबसे पहले ये पूछा करो कि आर दोज थिंग्स अंडर योर कंट्रोल और नॉट। फिर उसका डिग्री पता करो कि टू व्हाट एक्सटेंट कैन यू ब्रिंग देम अंडर योर कंट्रोल, राइट? टू व्हाट एक्सटेंट कैन यू मेक योर कंट्रीब्यूशन टू इट। अगर आपको मिल गया वो एरिया, 10% मिले, 20 मिले, 30 मिले, 40 मिले, जो भी हो, अगर आप प्राइम मिनिस्टर हो तो दुनिया भर की चीजें आपके 70% आपके कंट्रोल में है। आप डिग्री पता कीजिए कितना कंट्रोल। अगर तो कंट्रोल में नहीं है आपके, तो फिर आप वैसे भी क्या कर लोगे उसके बारे में? तो आप जो कर सकते हो वो कीजिए। अगर आप जर्नलिस्ट हो, मेरा मतलब ये है कि अगर आप जर्नलिस्ट हो तो आर्टिकल लिखिए, म्यूजिशियन हो तो कोई राग जो इस पीरियड को अपने आप में अपने सीने में समा सके उसके स्वर लिखिए। अगर आप पोएट हो तो पोएम लिखिए, अगर आप टीचर हो तो स्टूडेंट्स को पढ़ाइए। आप अपना रोल जरूर कीजिए। बाहर से आया है स्ट्रेस। अब मैं योग पे आ जाता हूं कि योग क्या कहते। सबसे पहला योग करने लायक कौन सा है? वैसे तो हठ योग ही है, ताकि अगर अच्छी बॉडी होगी तो अच्छा माइंड होगा ही होगा, राइट? A healthy mind can stay in, only in a healthy body for a very long duration, that means. Otherwise also it can stay. Even if your body is diseased, you can still have a healthy mind or distorted. नंबर 1 पे जो योगा करने वाला है, इनफैक्ट आप हठ योग भी नहीं कर सकते उस योग के बगैर, और वो आपका आंसर है, अपना ज्ञान बढ़ाइए। सबसे पहला योग ज्ञान योग कीजिए। देखिए कहां से इसका ज्ञान मिल सकता है of how to handle external stress. Epicurus could come to your rescue. He has said कि things do not disturb us. Check, there is something inside you that is causing the disturbance. एक डॉक्टर डिस्टर्ब नहीं होता। अगर बर्न पेशेंट भी आ जाए, किसी का एक्सीडेंट भी हो जाए, हाथ पैर भी कटे हुए हों, तो अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो आप क्या उससे अपना पेशेंट ठीक करवाएंगे? अगर वही रो पड़ा आपके पेशेंट को देख के, आप खुद तो रो ही रहे हो, ठीक है? उस स्ट्रेस को कन्वर्ट करने का रास्ता ढूंढिए। कैसे कन्वर्ट? जैसे गालिब ने कन्वर्ट किया स्ट्रेस को,
कैसे कैसे स्ट्रेस को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को, हर चीज को उसने कैसे कन्वर्ट कर मारा. His personality became a prism through which light broke into 7 colors. 70 ghazals, 700 ghazals, 700 couplets. ज्ञान योग पहले, और उसको करना भक्ति के भाव से है. तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर सकता हूं. आपका सवाल छोटा मोटा नहीं है सर. कई घंटे लगेंगे मुझे इसका आंसर देने में. मैं आपकी छोटी सी बात को बीच में, एज यू सेड, आप जो भी हो अपने तरीके से उसको करने की कोशिश करिए. Like I would simply narrate one simple instance of my life. I experienced some external stress and I put it in a poem. और वो मैंने एक नज़म लिख के वो अपना स्ट्रेस तो निकाल दिया उस वक्त, लेकिन जो नज़म लिखने के बाद जो बाद में बड़ा स्ट्रेस मेरे ऊपर आया वो शायद मैं आज भी नहीं निकाल पा रहा हूँ. वो दूसरी नज़म लिखने के लिए आ रहा है ना. दूसरी पोएम लिखने के लिए आ रहा है. आप उसको भी कन्वर्ट करिए. फिर वो चाणक्य वाली नीति वाली बात आएगी कि पहले इसको 10 दिन की सजा देनी थी, अब इसको 240 दिन की सजा दो. हाँ, तो निकलेगा वसी से ना. देखिए, जब तक नेक्स्ट लेवल नहीं देखोगे आप चीजों का, आप उनके बारे में लिख नहीं पाओगे, बात नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे. But it is hard, it is hard. Yes, it is. See, लाइफ में कोई भी अच्छी चीज इजी तो हो ही नहीं सकती. हम again, it is our skewed thinking. Actually, psychologically, a human default setting. We seek the easiest path to the goal, the fastest path to the goal, the most economical path to the goal, the maximum reward path to the goal. सब कुछ मेरे हिले बगैर हो जाए, करे बगैर कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता. हर चीज हार्ड वर्क से ही मिलती है. इवन गालिब ने एक और जगह पे कहा है कि रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज. रंज इज सॉरो एंड मिजरी. रंज से खूगर, खूगर मीन्स भर गया, ठीक है, पूरा भर गया. रंज से खूगर हुआ, अकस्टम्ड हो गया, ठीक है. इतनी बार उस स्ट्रेस से निकलना पड़ा, इतनी बार, 7 बार सोचिए, 7 बार गालिब को अपने बच्चों के नहीं रहने के स्ट्रेस से निकलना पड़ा, एंजाइटी से निकलना पड़ा, डिप्रेशन से निकलना. इससे ज्यादा स्ट्रेस किसी पेरेंट के लिए नहीं होता है जब उसका बच्चा चले जाता है उससे पहले. एंड दिस इज व्हाट ही रोट कि रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज. एक दिन सॉरो और ग्रीफ मिट जाते हैं, लेकिन उसके लिए निकलना तो पड़ेगा बस. रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज. मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई. आपके लिए भी आसान हो जाए, आप करिए तो सही. You have to pay a price for every nazm, for every poem, for everything. He converted his life into दीवाने गालिब. आप दीवाने चमक लिखिए, चमक देखिए. नहीं, ऐसे ही निकलेगी, वैसे नहीं आएगी बाहर. जिसका जो रोल है ना, प्लीज आप वो रोल कीजिए. फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ऊट पटांग डिस्कशन मत कीजिए, ठीक है. ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर रहा, पुलिस ये नहीं कर रही. आपको भेज दूं वहां पे, आप कर लोगे. हम सभी लोग, आपको नहीं कह रहा हूं, हम सभी लोग बार में बैठ के जब सचिन बैटिंग कर रहा होता है तो फिर ओ यार छक्का, यार ओ यार क्या यार तू मिस कर रहा है. आपको भेजूं, आप फेस कर लोगे 90 माइल्स पर आवर वाली बॉल आती हुई. मेरे से तो टेनिस बॉल से नहीं खेल होता क्रिकेट. असली बॉल आ जाए तो मैं तो भाग ही जाऊं. इट्स वेरी इजी. बाहर रह के सबों के लिए सर बहुत आसान होता है बात करना, बोलना, लेकिन ये भी नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते. वी कैन फिल अप द टाइम विद वॉट एवर वी लव, वॉट एवर वी लाइक. आई एम श्योर यू लाइक थिंग्स, आई एम श्योर यू लव थिंग्स. A lady is filling up her time by checking on her father. We just saw that. The GPS is filling up his time, getting after my blood and like me. आ जाओ सर. ठीक है, वो सेशन पे सेशन करा रहे. प्रीति देखिए कैसे टाइम निकाल रही है.
2 घंटे हो गए ना उसके, 24 घंटे में से 2 घंटे बीत गए ना आज। और इसको प्लान करने में 3-4 घंटे लगे होंगे, गुरलीन के भी लग गए, हो गया ना टाइम। और ये बड़ा अच्छी तरह से पास हो रहा है ना, मतलब मुझे ये नहीं कि मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, माशाल्लाह मैं आप सबों को सुनना चाहूंगा एक दिन इंशाल्लाह। हम सबों को टाइम मिल रहा है, हम सबों के दोस्त बन रहे हैं। सिमर जी, एक आखिरी क्वेश्चन हमारे पास और भी आ गया है, आने दीजिए। कि हम सारी लाइफ अपनी मेहनत करते हैं और काम भी पूरा करते हैं, फिर भी हमें उतना रिवॉर्ड नहीं मिलता, तो उसका भी स्ट्रेस होता है, उसका डिप्रेशन भी होता है, तो उसको कैसे हैंडल करें? जैसे आप जो मर्जी कर लीजिए, जिसका भी सवाल है, ये भी सबों का ही सवाल है, साइकोलॉजिकल सवाल कभी भी किसी के पर्सनल तो होते नहीं है, 100% सबों के लिए होते हैं। आप जो मर्जी कर लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, अच्छे से अच्छा काम कर लीजिए। नेचर प्रोग्राम्ड ऐसे है कि समथिंग और द अदर विल नेवर बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन यू आर प्लानिंग थिंग्स, सो समथिंग और द अदर विल ऑलवेज गो रॉन्ग। ठीक है, यू मस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस कि आप 100% अपना जोर लगा दीजिए किसी भी काम को करने में, किसी भी चीज को करने में सारी उम्र लगा दीजिए, फिर भी एक चीज होके रहेगी कि आप सारी चीज के ऊपर, सारे वेरिएबल्स के ऊपर प्लान नहीं कर सकते हो। देयर विल बी सम वेरिएबल्स। देखा ना अपना चंद्रयान जो था, मून के कितना करीब पहुंच गया था, सब कुछ हो गया था, लास्ट कुछ स्टेप्स में गड़बड़ी हो गई। अब उससे घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, अगली बार वो नहीं होनी चाहिए, इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और क्या, कौन सी ऐसी चीज है जो गलती करके नहीं सीखे हो आप, जिसके लिए आपने गलती नहीं की है? आप जो मर्जी कर लीजिए, अच्छे से अच्छा काम कर दीजिए, किसी को हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, रोड से उठा के अपनी गाड़ी में वहां जाके भर्ती करवा दीजिए, वहां जाके फोन करिए, उसके रिलेटिव्स को बुला दीजिए, तब तक उसकी देख रेख करिए, यहाँ तक कि अपनी जेब से पैसे भी दे दीजिए, उसके इनिशियल बुकिंग अमाउंट्स या जो भी है उसको हैंड ओवर करके चले जाइए। फिर भी आपको 20% लोग ऐसे जिंदगी में मिल ही जाएंगे, शायद ज्यादा ही मिल जाए, जो ये कहेंगे इसका कोई पर्सनल मोटिव था तभी इसने ये सब किया। या तो उसकी लड़की पे आंख थी इसकी, ठीक है, या इसको सुंदर औरत दिख गई थी, इसलिए उसने उठा के हॉस्पिटल भेज दिया, या ये इससे कोई ना कोई इनाम चाहता होगा। ये मेरा ही फीलिंग नहीं है। इवन जॉन एफ कैनेडी जैसे बंदे ने कहा था एक बार कि एक चीज याद रखना जिंदगी भर के लिए, कि 20% ऑफ पीपल, 20% ऑफ ह्यूमैनिटी इज बॉर्न टू बी अगेंस्ट यू। वो पैदा ही तुम्हारे अगेंस्ट होने के लिए हुई। अब मैं उसको आपके सवाल पे भी ले आता हूं कि जो मर्जी कर लीजिए, 20% से लेके 40% तक, 50% तक चीजें मे नॉट गो एज यू प्लान्ड, मे नॉट टर्न आउट एज यू वांटेड। दिस इज नेचर. This is the way nature behaves. This is the way nature functions. This is the way nature works. मैंने सबसे अच्छे काम किए, सारी उम्र किए, फिर भी मुझे जेल हो गई, फिर भी मुझे पनिशमेंट हो गया, फिर भी मुझे कुछ हो गया, अब गालिब ने कौन सी गलती की थी बता दो, अगर मैं उसी का एग्जाम्पल दे दूं कि उसके 7 बच्चे ना टिके, अपनी किस्मत को कोसे बैठ के, या लिखता रहे। वो कोस भी सकता था सारी उम्र, लेकिन उसने कोसा नहीं किस्मत को, जीता रहा, लिखता रहा, बात करता रहा, मैंगोज खाता रहा, शराब पीता रहा, उधार लेता रहा, और मर गया। और आज याद आता है। उसी ने कहा था। और कोई सवाल तो नहीं है? No, I don't think so. I don't think so. हो गए questions. Okay. So I'll just take the help of Ghalib only for the closing remark. उसी गजल में से कि ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। एक शेर किसी और गजल से पढ़ दूं मैं, वो भी आपके काम आ जाएगा सबों के, फिर मैं ये आखिरी शेर पढ़ दूंगा। तो ये दूसरी गजल में से है कि इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना। इशरत इज अ ड्रॉप, राइट?
ड्रॉपलेट की लॉन्गिंग है, विश है, डिजायर है, जो भी है कि आई जस्ट शुड मर्ज इनटू द ओशन। मतलब मुझे ज्ञान हो जाना चाहिए। परम ज्ञान को भी यही कहते हैं ना, अ ड्रॉप मर्जेस इनटू द ओशन। ऑल्दो वहां कैसे मर्ज करता है मेरी तो आज तक समझ में नहीं आया, बट ज्ञान के रास्ते से जो समझ में आया वो बता रहा हूँ, जो गालिब को समझ में आया वो बता रहा हूँ, और इसी रास्ते से समझ में आता है मैं आपको बताऊं, और कोई रास्ता है नहीं, बाकी सब रास्ते किसी काम के नहीं। मेडिटेट कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, किसको सूट करेगा, किसको नहीं सूट करेगा। कुछ लोगों को नहीं सूट करेगा। He himself has said कि जानता हूं सवाबे, I'm forgetting the शेर, just give me 1 second. Okay, I'll give you the other one. I'll just complete the other one. इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना। उसकी लॉन्गिंग है कि मैं एक हो जाऊं दरिया के साथ, रिवर के साथ। दरिया आप समझते ही हैं, रिवर। इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है, दवा हो जाना। जब एक लेवल से गुजर जाओगे ना, तो उसके बाद में आप दूसरों की हेल्प कर सकोगे। तो गुजरने दो ना अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेस से, क्या जाता है, गुजरने दो एंजाइटी से, क्या जाता है। यू आर लर्निंग अबाउट योर सेल्फ। आपको कौन सी चीज स्ट्रेस देती है, वो आपको अपने पर्सनालिटी के बारे में कुछ बता रही है। कौन सी चीज आपको एंजाइटी में डाल देती है, आपके बारे में कुछ बता रही है। आप डिप्रेशन में डाल देती है, आपका वैल्यू सिस्टम बता रही है आपको। इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है, दवा हो जाना। मुझे दूसरा शेर अगर आप 1 सेकंड दें तो मैं देख के बता देता हूँ, बिकॉज एकदम से याद नहीं आ रहा। उतनी देर में मैं की बात कर लूं? हाँ करिए करिए, मिल गया वैसे मुझे, जब तक आप शेर याद करते हो। हाँ जी, आ गया याद। ओके। जानता हूं सवाबे तात ओ जहद, जानता हूं सवाबे तात ओ जहद। ये थोड़ा पर्शियन वर्ड है, इसका मतलब ये है कि आई नो द बेनिफिट्स ऑफ प्रेयर एंड ओबेसेंस and going for hajj and everything and all those things. मैं जानता हूँ सवाबे तात ओ ज़ुहद, I know the blessings that will come to me, will accrue to me, through prayer, through penance, through obeisance. लेकिन तबीयत उधर नहीं जाती। मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं मानता है प्रेयर के लिए, हज पे जाने के लिए नहीं मानता। आई एम नॉट मेड लाइक दैट, लाइक द मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल once said, the philosopher also, we are made of such clay that we cannot believe. आपके लिए मेडिटेशन सूट नहीं करेगा, ठीक है? आपके लिए हर एक मेथड हर किसी को सूट नहीं करता है, ये सीखने वाली बात है। और आखिरी शेर जिससे मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, वो उसकी उसी गजल में से था जिसका ओपनिंग शेर था कि ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। उसका आखिरी शेर है कि हुई मुद्दत के गालिब मर गया। मुद्दत मतलब बहुत साल गुजर गए, बहुत टाइम हो गया। हुई मुद्दत के गालिब मर गया, फिर भी याद आता है। आ रहा है ना आज याद, कर रहे हैं ना सब लोग डिस्कस उससे। तो आप भी कुछ ऐसा कर जाइए ना, हम सब मिलके कुछ ऐसा कर जाए। आज का सेशन रिकॉर्ड तो हो ही गया, और भी दुनिया भर के प्रीति ने और जीपीएस ने और गुरलीन ने मिल के माजा हाउस ने पता नहीं कितने सारे अच्छे अच्छे लोगों की बातें रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दी हैं, डालते जा रहे हैं, सदा के लिए डल गई। हुई मुद्दत के गालिब मर गया, फिर भी याद आता है। ये हम सबों के साथ हो, आप सबों के साथ हो, मेरी दुआ है।
जो उसके साथ हुआ वो हम सबों के साथ हो, आप सबों के साथ हो, और आगे बढ़ाइए इस बात को, अपने तक ना रखिए, आगे दीजिए जितनों को दे सकते हो। कि हुई मुद्दत गालिब मर गया फिर भी याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता, वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। थैंक यू। चलो, आपके सेशन से आज ये तो पता चला कि गौतम बुद्ध हो या जीसस क्राइस्ट हो, वो सब के सब इंसान हैं, और अगर इंसान हैं तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी है और सबके लिए दुख भी है। आपने गालिब की बात की, साहिर की बात कर देता हूँ कि उन्होंने भी ये कहा था कि जहां में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं, तो गम तो सबको ही मिलेगा और हम सबके हिस्से भी आएगा। बात सिर्फ ये है कि इसको हैंडल कैसे करना है, जो कि आज आपने हमें बताया। सो वी थैंक यू फॉर दैट। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई आखिरी जाते जाते कोई एडवाइस है, कोई वाइज वर्ड्स हैं, तो आप प्लीज शेयर कीजिए एंड देन विल साइन ऑफ। प्रोफेसर को सेशन में बुला के ना तुम लोग गलती कर बैठे हो, अभी तक एहसास नहीं हुआ है क्या? हमारी अगर अब बटन ऑन कर दो ना, फिर हम 2-3 घंटे चुप नहीं हो सकते। ठीक है, आखिरी, चलिए लेट मी सी व्हाट, कोई सवाल पूछ लो, मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, किसी को अपॉर्चुनिटी दे दीजिए, किसी को भी कोई भी सवाल पूछ ले। I think I see somebody's hand. Shobha Gulati. Shobha Gulati is asking a question. Shobha Gulati. How to make Go ahead, please. Time schedule in present circumstances? How to? How to make a disciplined time schedule in present circumstances? बना लीजिए एक टाइम टेबल, आप अपने हिसाब से बना लीजिए पहले, फिर आप मेरे से डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन नहीं है। हाउ टू, देखिए एक जनरल आंसर दे देता हूं, पहले लिस्ट कर लो उन चीजों को जो आप चाहते हो कि हर रोज होनी चाहिए, फिर उन चीजों की लिस्ट बना लीजिए जो हफ्ते में एक बार होनी चाहिए, से काम चल जाएगा। फिर उन चीजों की लिस्ट बना लीजिए कि जो महीने में एक बार करने से काम चल जाएगा, फिर 3 महीने में एक बार काम करने से चल जाएगा, 6 महीने में, और साल में एक बार। अब बर्थडे रोज रोज तो मनाने का दिल नहीं करेगा ना, ठीक है। तो एक बार ही मनाया जाता है। मैरिज एनिवर्सरी भी एक ही बार मनाने से ठीक रहती है फैमिली, ठीक है। सो इसकी लिस्ट बना लीजिए, फिर इस चार्ट के ऊपर वर्क कीजिए कि मुझे कौन सी डेट्स पे कौन सी चीजें डालनी है। आई होप दिस हेल्प्स। वैसे इट इज बेटर टू मेक अ टाइम टेबल विच यू थिंक यू विल बी एबल टू लिव अप टू। पहले बना लीजिए, फिर उसको ट्राई कीजिए, फिर मुझे बताइए कहाँ पे आपसे नहीं हो रहा है, and then we can straighten it out. It takes some time to straighten these things out, you know. पहले बना के करिए उसको, एक चीज शुरू तो करिए। We have actually given your coordinates on this शुरू में, अभी गुरलीन फिर से डाल देगी एक बारी। तो anybody who wants to actually contact you separately for personal questions or anything else, consultation, please आप सिमर के साथ बात करिए अलग से। गुरलीन, please put it once again, हाँ? Yeah, it's there. Thank you. It's already there. I have a dog, as you can hear. क्लोजिंग रिमार्क में मैं आपको एक और गजल जिसमें दोनों साइड के आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, उसके चंद आशार पढ़ देता हूँ, राइट? या जो मुझे याद है वो बोल देता हूँ। काफी लंबी गजल है, ठीक है, झेलिए। अब आपने खुद कहा है बोलने के लिए, अब थोड़ी देर झेलना पड़ेगा। वो शुरू ऐसे होती है कि गीत को उठने दो और सांस को छिड़ जाने दो। गीत को उठने दो और सांस को छिड़ जाने दो। गीत को उठने दो और सांस को छिड़ जाने दो, जरा संभलने दो मीरा की थिरकती पायल, जरा गौतम के सदे पांव बहक जाने दो। गीत को उठने दो
और सांस को छिड़ जाने दो, जरा संभलने दो मीरा की थिरकती पायल, जरा गौतम के सदे पांव बहक जाने दो। यानी कि गौतम बुद्ध को पता चले कि भाई ये सदे पांव चलने से ही सच की प्राप्ति नहीं होती है, कभी नाच भी लिया करो, ठीक है, मीरा की तरह। जब देखो मतलब इतने सीरियस होके चलते रहते हो इधर उधर। और मीरा को ये समझ में आ जाए कि देखो बॉस, हर वक्त नाचने से काम नहीं चलेगा, कभी जरा सदके भी चल लिया करो, ठीक है। जब देखो नाचती रहती हो, ठीक है, जब देखो शुरू हो जाती हो नाचना, फिर बजाना, फिर गाना। जिंदगी दोनों साइड से बनी हुई है। और मजेदार बात यह है कि दोनों साइड का जो मैंने ग्रे एरिया की बात की थी वो कनेक्टेड है। अब मैं क्या करूं, हमारी लैंग्वेज में वर्ड्स कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं कि गुड और बैड कनेक्टेड नहीं है, राइट और रॉन्ग कनेक्टेड नहीं है, ट्रुथ और लाई कनेक्टेड नहीं है, मेल और फीमेल कनेक्टेड नहीं है, सब कनेक्टेड है। यहाँ पे मैटर एंटी मैटर से कनेक्टेड है, तो बचा क्या बता दो। सिर्फ चंद शेर और की गीत को उठने दो और सांस को छिड़ जाने दो, जरा संभलने दो मीरा की थिरकती पायल, जरा गौतम के सदे पांव बहक जाने दो। और कब से है झांक रही छत से चांदनी की परी, कब से है झांक रही छत से। होता है ना आंगन, पुराने घरों में आंगन हुआ करता था जिसमें शाम को दिया जला दिया करते थे किसी तुलसी के पेड़ के साथ। तो ये उसको शायद उस इमेज को जहन में रख के किसी शायर ने लिखा है कि कब से है झांक रही छत से चांदनी की परी, दिया बुझा दो। यानी कि खुद के बिलीव्स, खुद के ओपिनियंस, खुद के चीजों को कभी क्वेश्चन किया करो, उसको बुझा भी दिया करो। सब कुछ जो जानते हो वो सही नहीं है, दिया बुझा दो। कब से है झांक रही छत से चांदनी की परी, दिया बुझा दो, आंगन में उसे उतर आने दो। वो तभी उतरेगी आंगन, आंगन में उसे उतर आने दो। और कभी मंदिर से भी उठने दो आजान की आवाज, कभी मंदिर से भी उठने दो आजान की आवाज। हम उठने देते हैं? दिया आज तक। कभी मंदिर से भी उठने दो आजान की आवाज, और कभी मस्जिद की घंटियों को भी बज जाने दो। गीत को उठने दो और साज को छिड़ जाने दो, जरा संभलने दो मीरा की थिरकती पायल, जरा गौतम के सदे पांव बहक जाने दो। चुप्पी को छूने दो लफ्जों के नर्म तारों को, चुप्पी को, अपने जो अंदर साइलेंस है उसको लेके मत चले जाना यहीं से। इसलिए चुप्पी को छूने दो लफ्जों के नर्म तारों को, चुप्पी को छूने दो लफ्जों के नर्म तारों को। आप जिस भी इमोशन से गुजर रहे हैं, जिस भी फीलिंग से गुजर रहे हैं, जिस भी थॉट से गुजर रहे हैं, जिस भी वर्क फ्रॉम होम, वर्क एट होम, जिस भी चीज से गुजर रहे हैं, अगर हो सके तो ये कीजिए जो इस शेर में वो कह रहा है कि चुप्पी को छूने दो लफ्जों के नर्म तारों को। चुप्पी को, अपने साइलेंस को अंदर के, छूने दो लफ्जों के नर्म तारों को, और लफ्जों को, और लफ्जों को चुप्पी की गजल गाने दो, और लफ्जों को ये जो चुप्पी है, ठीक है, इसकी गजल गाने दो। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सिमर जी, थैंक यू सो मच। आपकी तो जितनी साइकोलॉजी की पकड़ है, पोइट्री की भी उतनी ही है। और जो हमारे शायरी के कदरदान है उनकी तरफ से आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स भी आ गए हैं। डॉक्टर शेखदा लिख दिया है, चारू वैद ने वाव लिख दिया है। हम भी सलाम करते हैं आपकी नॉलेज को। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अभी और भी कुछ क्वेश्चंस थे जो लोगों ने अभी डालने शुरू किए हैं, तो उनके लिए आई विल जस्ट से कि हमने अभी शेयर की थी इनकी वेबसाइट, तो आप प्लीज वहां पे कांटेक्ट करके अपने क्वेश्चंस इनको एड्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे हमारे पास अब और टाइम नहीं है। सो वी आर सॉरी फॉर दैट एंड वी अपोलोजाइज, पर ये क्वेश्चन बहुत लेट आया था। और मैं सारे मेंबर्स का थैंक यू करता हूँ कि आप सबने हमको आज ज्वाइन किया। और
मैं आशा भी करता हूँ कि आप आगे भी हमें ज्वाइन करते रहेंगे, क्योंकि अगले हफ्ते हमारे फिर से 2 सेशन हैं एंड दे आर बोथ वेरी इंटरेस्टिंग सेशंस जो स्टोरी टेलिंग के बारे में हैं और सिनेमा के बारे में हैं. तो डू जॉइन अस एंड थैंक यू सो मच सिमरजी फॉर बीइंग विद अस and thank you so much for sharing. Thank you, Preeti. Thank you, Thank GPS. you. Thank you, Gurleen, for all the coordination. Thank you, everyone, for joining in. It's been my pleasure. Thank you very much for having me. Thank you so much. Thank you very much. And Bye-bye. thank you, Gupta, also. Thank you.